चलो क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। ये आया किसी को? हाँ सर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ था। हाँ, अभी शेयर हो रहा, देख लीजिए एक बार। सी द क्वेश्चन। An electric current is being passed through a circuit containing the two wires of the same material connected in the parallel. If the length and the radii are in the ratio of 4 by 3 and 2 by 3, then the ratio of the current passing through the wires will be equal to your how much? ट्राई करिए बेटा कोई। An electric current is being passed through the circuit containing two wires, यानी एक ही मटेरियल है, तो मटेरियल सेम रहेगा तो डेंसिटी विल बी रिमेनिंग फॉर मी सेम, isn't it? So दोनों वायर्स का मटेरियल क्या है? सेम है। Can write here for two wires material is same. Material is same, so rho is same. Rho is nothing but density. 1/3। हाँ, 1/3 is the answer. The lengths are in the ratio, यानी L1 divided by L2 कितना दिया बेटा? 4/3। एंड रेडियस दे रखा है R1 divided by R2, ये कितना दे रखा है? 2/3। ठीक है ना? बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड इन विच कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब ये हो गया एक वायर इस तरह से, ये हो गया एक वायर इस तरह से, both of them are connected to an external source of your battery somewhat like this, isn't it? इसका रेजिस्टेंस है R1 और इसका रेजिस्टेंस है R2। अब इसमें से करंट निकल रहा है राइट नाउ, से फॉर एग्जांपल I, तो यहाँ पर आने के साथ ही इसमें करंट आ जाएगा यहाँ पर I1, और इसमें करंट आ जाएगा I2। दिस इज योर करंट विच इज नथिंग बट अ फेयर विच इज बीन फ्लोइंग। बोथ ऑफ देम आर इन विच कॉम्बिनेशन बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पोटेंशियल सेम होता है। So I can write this one as I1 R1 is equals to your I2 into your R2। ठीक है ना? तो I1 divided by your I2 will be equal to your R2 divided by your R1, isn't it? So R का वैल्यू तो हम लोग को मालूम है, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला R is equals to rho into your L2 divided by your area of the wire in terms of radius, it is pi R2 square divided by rho into L1 divided by pi into your R2 square। तो इसमें कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है क्या? देखो, रो और रो कट गया, पाई और पाई कट गया। सो आई विल बी गेटिंग द रिलेशन राइट नाउ फॉर दिस वन। I1 by I2 is equals to your, ये हो गया L2 divided by your L1 आ जाएगा, इंटू ये बन जाएगा R1 divided by R2 का होल स्क्वायर। आया बेटा? L2 by L1 की वैल्यू कितनी दे रखा है? प्रॉब्लम L1 by L2 की वैल्यू दे रखा है 4/3, होता है ना? L1 by L2, तो सॉरी ये L2 by L1 है, तो यहाँ पर मुझे आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 3/4 इंटू R1 by R2 is 2/3 का होल स्क्वायर। 2 स्क्वायर इज नथिंग बट 4, 3 स्क्वायर इज नथिंग बट ऑफ 9। A4 कट गया, 3 1s are 3 3s are, so that will be equal to 1/3 is your answer। आया सभी को? इज इट क्लियर? व्हाट इज डेट टुडे बेटा? 24। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिख लो बेटा जल्दी से। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज।
Okay. Wheatstone bridge क्या है बेटा? It is a combination of what? 5 resistance between the terminals of A and as well as of your B. So you can write there. It is a combination. It is a combination of क्या? 5 resistance. 5 resistance between A and B. Somewhat like this. यहाँ पर एक circuit in between. यहाँ पर and this one are terminals. This is your terminal B and this is your terminal A. तो इन दोनों के बीच में एक रेसिस्टेंस होगा यहाँ पर, इन दोनों के बीच में एक रेसिस्टेंस होगा यहाँ पर, एंड इन दोनों के बीच में एक रेसिस्टेंस यहाँ पर, और फिर इन दोनों के बीच में एक रेसिस्टेंस यहाँ पर. ओके, और इसकी वैल्यूज हो जाएंगे यहाँ पर. देखिए यहाँ पर आई एम टेकिंग R1, this one I am taking it as R2, this one I am taking as R3, this one I am taking it as R4, and middle one is nothing but of your R5. So it is a combination of how many resistance beta? It is a combination of your 5 resistance part of relation. So basic condition क्या होता है? I'm directly writing the result. अगर मान के चलो if R1 by R2 is equals to, if R1 by your R2 is equal to your R3 divided by your R4, then it is said to be in the balanced condition. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Balanced bridge. ठीक है. So balanced bridge के लिए condition क्या होना चाहिए? R1 by your R2 must be equal to R3 by your R4. Then the current passing through I5 will be equal to how much for me? 0. So I can say that current through your I5. So I can write here, no current will flow in R5. So we can remove it and solve problem. We can remove it and we can solve the problem. ठीक है ना. तो अगर ऊपर उसमें अगर मैं R1 और R2 को निकाल दूं तो this combination will become something like this. ये हो गया B और ये हो गया A. तो यहाँ पर एक रेसिस्टेंस रहेगा, फिर यहाँ पर एक रेसिस्टेंस रहेगा, फिर नीचे एक रेसिस्टेंस रहेगा, फिर यहाँ पर एक रेसिस्टेंस रहेगा. So this one is R1, this one is R2, this one is R3 and this one is your R4. R1 and R2 will be in series and R3 and R4 will also be in the series. And इस सर्किट में ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ right now. This will become for me something like this. ठीक है ना. तो यहाँ पर हो गया right now R1 plus R2 are in series. So ये हो गया R1 plus R2 और नीचे वाला भी R3 plus of your R4. So this is the terminal B and this is your terminal A. Now this both are in which combination beta? This both are in which combination? Can anyone tell me? Both of them are in the parallel combination. Parallel. तो parallel combination में effective resistance कितना बन जाएगा? देखो जल्दी से. So R effective will become how much for me? 1 by your R effective will be equal to your 1 by R1 plus of your R2 plus 1 by your R3 plus of your R4. ठीक है. क्लियर बेटा? यस सर. इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना बचेगा? R equivalent will be equal to your, ये बन जाएगा R1 plus of your R2 into ये हो जाएगा R3 plus of your R4 divided by ये बन जाएगा R1 plus of your R2 plus R3 plus of your R4. तो ये हो गया R effective का फॉर्मूला. ठीक है बेटा? इज इट क्लियर? यस सर. चलो वेरी गुड. Yes, sir. अगर मैं अनबैलेंस्ड कंडीशन के बारे में बात करूं, इफ इट इज एन अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, इफ इट इज एन अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी अगर मैं यहाँ पर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के पास अगर मैं दो पॉइंट्स लेता हूँ, यहाँ पर पॉइंट P और ये हो गया पॉइंट Q. सो इन बैलेंस्ड बारे में पोटेंशियल ऑफ VQ will be VP will be equal to VQ. In the balanced Wheatstone bridge, potential of the P will be equal to potential of Q. That is the reason there is no flow of your current. Unbalanced condition में क्या होता है कि potential of the P is not equal to potential of your Q. ठीक है ना.
तो इसमें ऐसा हो गया यहाँ पर, इसमें हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया एक रेसिस्टेंस, फिर यहाँ पर हो गया एक रेसिस्टेंस, देन देयर इज ए फ्लो ऑफ ए करंट इन दिस वन लाइक दिस। तो यहाँ पर हो गया एक पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर हो गया एक नेगेटिव टर्मिनल। सो ये हो गया Q और ये हो गया मेरे पास P। तो इसमें से फ्लो ऑफ करंट हो रहा है बेसिकली। तो यहाँ से जब करंट आएगा बेसिकली दैट इज नथिंग बट I। सो यहाँ से करंट जो जाएगा, दिस वन इज नथिंग बट I1 एंड दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर I2। Okay, this is the resistance R1, this is the resistance R2, this is the resistance R3 and this is the resistance R4. So in unbalanced condition of Wheatstone bridge, यहाँ पर potential of the P will be greater than potential of your Q beta। अगर potential of the P is greater than of your potential of your Q part affiliation, when ये कब हो जाएगा? When R1 by your R2, R1 by your R2 is lesser than of your R3 divided by R4। अगर R1 by R2 का ratio is lesser than R3 by R4 ratio, then potential of the P will be greater than potential of your Q part affiliation। उसी तरह से मैं लिखूंगा अगर potential of your P is lesser than the potential of your Q। ये भी theoretical questions के लिए बहुत ज्यादा important है बेटा। R1 by your R2 must be greater than of your R3 divided by your R4। ठीक है ना? So when the potential is greater, when the potential is lesser, ये कहानी आपको याद होनी चाहिए। अगर potential of P is greater than potential of Q, then R1 by R2 is lesser than R3 by R4। If the potential of P is lesser than of your potential of your Q part affiliation, then R1 by R2 is lesser than of your R2 by R2। यानी फ्लो ऑफ करंट कहां से कहां पर होगा, ऐसे वाले क्वेश्चंस पूछता है बेसिकली। अगर मान के चलो मैं आपको एक न्यूमेरिकल बताता हूँ इसके ऊपर, देखो ऐसा कुछ होगा। ऑलरेडी ये मेडिकल एंट्रेंस में पूछा गया हुआ है। ये मान के चलो एक रेसिस्टेंस है, ये मान के चलो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये मान के चलो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और ये मान के चलो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। ठीक है ना? तो अब ये हो गया मान के चलो 4 ohms, ये हो गया मान के चलो 4 ohms, और ये हो गया मेरे पास 1 ohm, और ये हो गया मेरे पास 3 ohm। और दिस वन इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल पोटेंशियल ऑफ ए बैटरी समवॉट लाइक दिस। तो इसका पोटेंशियल है मान के चलो V वोल्ट, और ये इन दोनों के बीच में कनेक्टेड वायर है। ये हो गया टर्मिनल ए और ये हो गया टर्मिनल बी। Now, so if the conducting wires have been connecting between A and B beta, then the current in this wire will be equal to how much? My question is, if a conducting wire, if a conducting wire is connected, if the conducting wire is connected between A and B, diagram में दिखा हो रहा है, then current in this wire is, current in this wire, first option, flows from A to B. Second question, flows in the direction of, flows in the direction of, sorry, flows in the direction decided by potential, flows in the direction decided by potential V। ठीक है? एंड थर्ड ऑप्शन है 0, एंड फोर्थ ऑप्शन है flows from B to A। चलो चेक करो आंसर, कोई बता सकता है? देखो अभी बताया मैंने इसका कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली, फोर्थ ऑप्शन विल बी द आंसर। क्यों? देखो R1 by your R2 इज इक्वल से कितना आ रहा है? 4/4, यानी इसकी वैल्यू हो गई 1, isn't it? R3 by your R4 की वैल्यू कितनी आ रही? देखो 1/3। तो ऑब्वियसली कौन बड़ा है? R1 by your R2 is greater than of your R3 by your R4। So potential of your A is lesser than potential of your B, isn't it? अगर potential of your A is lesser than potential of your B, then from where there will be the flow of your current? Potential of A तो less है, तो potential of B ज्यादा है, तो there will be flow of current from your B to A। So B to A will be the answer। Clear है? Okay, so there will be the flow of current in this direction। Clear है बेटा? Yes, sir. चलो और एक क्वेश्चन ले लो जल्दी से। Resistance between point A and B is how much? ऐसा एक ट्रायंगल है,
एक सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर एक ट्रायंगल है, यहाँ पर एक ट्रायंगल है, और पॉइंट्स दे रखा है. दिस वन इज पॉइंट ए and this one is your point B. Sir, you're not audible. I'm not audible now. Hello, I'm audible beta. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Question is, the resistance between A and B. The resistance between A and B. यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है बेटा इस तरह से, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, और ईच का रेसिस्टेंस दे रखा है 2 ohms. ये दे रखा है 2 ohms, this one is 2 ohms, this one is 2 ohms, this one is 2 ohms, and this one is 2 ohms. Everyone is here 2 ohms. जल्दी से बताओ आंसर क्या हो जाएगा. डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. ए को पकड़ो, बाहर को निकालो बेटा. सो ब्रिंग द पॉइंट ए आउटसाइड. अगर मैं ए को पकड़ के बाहर लाऊंगा तो ये हो गया मिडिल रेसिस्टेंस एज इट इज, और यहाँ पर आ जाएगा इसका रेसिस्टेंस यहाँ पर इस तरह से, और इसका रेसिस्टेंस यहाँ पर, और ये हो गया टर्मिनल ये. ठीक है ना. तो नीचे वाला रेसिस्टेंस तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला भी रेसिस्टेंस ऐसे ही रहेगा, एंड दिस विल बी योर टर्मिनल ऑफ योर बी. तो ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, और ये भी 2 है. सो ऑब्वियसली मिडिल वाला क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा. सो आर इक्विवेलेंट कितना बनेगा बेटा, आर इक्विवेलेंट कितना बनेगा, 2 ohms बना, क्योंकि दिस टू आर इन सीरीज, दिस टू आर इन सीरीज. सो आर इफेक्टिव विल बिकम हाउ मच और में बेटा, ऊपर वाला कितना है 4, नीचे वाला भी कितना है 4, एलसीएम आ गया तो कितना आ जाएगा, R equivalent will be equal to your R. That means that will be equal to your 2 ohms. आया सभी को. ये दोनों सीरीज में है बेटा, और ये दोनों भी सीरीज में है. तो ये कितना बन जाएगा, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, देखो यहाँ पर, अगर बोलना इफेक्टिव है R1 प्लस R2. R1 प्लस R2 मतलब कितना, 2 प्लस, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू ये हो गया 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई, ये कितना बन जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2. तो कितना 2 प्लस 2 इज 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई, ये कितना है बेटा 8. ठीक है. 4 4 जा 16, 16 डिवाइडेड बाई 8. ठीक है. सो 8 1 जा 8 2 जा, ये हो गया 2 ohms. आया सभी को. चलो और एक क्वेश्चन देख लो बेटा जल्दी से इस पे. मान के चलो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन दे रखा है, this is point A and this is your point B. Okay, so we have got orally 13 resistance beta. Each of resistance कितना है मान के चलो capital R. Everything is given as for me capital R. ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है. This is also R, this is also R, and this is also your R. Okay, the effective distance between A and B is equal to how much? The effective resistance between A and B कितना होगा जल्दी बताओ. इसकी ऑप्शंस दे दे रहा हूं मैं. फर्स्ट ऑप्शन इज नथिंग बट 2R, सेकंड ऑप्शन इज 4R by 3, थर्ड ऑप्शन इज योर 2R by 3, and fourth option is your capital R ohms. चलो जल्दी ट्राई करो. R by 3. 2R by 3, very good.
ये देखो बेटा, ये वाला और ये वाला कौन सा कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये वाला कौन सा कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये वाला कौन सा कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये वाला कौन सा कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो r प्लस r कितना हो जाएगा बेटा? 2r। 2r और इसका जो आंसर आया अपने पास 2r, ये 2r और ये r कौन सा कॉम्बिनेशन में बन जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में बन जाएगा। तो कितना इफेक्टिव आएगा बताओ जल्दी से। अगर मैं इसका डायग्राम में इसको ऐसा ड्रॉ कर दूं, ये होगा एक रेसिस्टेंस यहाँ पर, ये होगा एक रेसिस्टेंस यहाँ पर, ये हो गया एक रेसिस्टेंस यहाँ पर, ये हो गया एक रेसिस्टेंस यहाँ पर, ये हो गया टर्मिनल बी और ये हो गया टर्मिनल ए। तो अब इसमें यहाँ पर कितना बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा मेरे पास 2r/3, ये बन जाएगा मेरे पास 2r/3, ये भी बन जा रहा मेरे पास 2r/3, और ये भी बन जा रहा मेरे पास 2r/3। तो मिडिल वाला इनइफेक्टिव बन जाएगा। सो ऑल ऑफ देम आर सेम, तो r इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? r के बराबर होगा। सो दैट r वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? 2r/3। क्लियर है? इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. चलो वेरी गुड। Yes, sir. अब हम लोग थोड़ा अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ते हैं इन डिटेल। सो नाउ वी विल बी ट्राइंग टू टॉक अबाउट योर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो मान के चलो मेरे पास एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है एंड देयर इज वन मोर रेजिस्टेंस हियर राइट नाउ। तो नीचे भी एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, देन इन दोनों के बीच में यहाँ पर कहीं पर वोल्ट मीटर लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है। दिस इज योर टर्मिनल बी एंड दिस वन इज योर टर्मिनल ए। इसका रेजिस्टेंस है मान के चलो R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, इसका रेजिस्टेंस है R3 और इसका रेजिस्टेंस है R4। तो इन व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन में क्या है बेटा? R1 by your R2 is not equal to your R3 divided by R4. So potential of your A is also not equal to potential of your B. And voltmeter will give me what? Reading, isn't it? And voltmeter will give reading, है कि नहीं? क्योंकि दोनों के बीच में पोटेंशियल तो जीरो नहीं है, तो वोल्टमीटर तो कंपलसरी विल गिव मी द रीडिंग। to find out that reading, what will be doing बेटा? देखो यहाँ पर right now लिख रहा हूँ, to find out the reading of open, तो इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? To find out the reading हम लोग क्या करेंगे? ओपन आइडियल वोल्टमीटर। आइडियल वोल्टमीटर के लिए रेजिस्टेंस कितना होता है? इन्फिनिटी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करंट इन R1, R2, R3 and R4, ठीक है। So we need to calculate in the currents in your R1, R2 and R3। तो वोल्टमीटर को निकाल दो, वोल्टमीटर को निकाल दे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ गया, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ गया, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ गया, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ गया। तो अब इसको हम लोग एक पोटेंशियल से बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव एंड एज वेल एज ऑफ योर नेगेटिव, ठीक है ना। तो देयर इज अ पोटेंशियल राइट नाउ हियर। तो यहाँ पर का टर्मिनल कितना था? ये, और यहाँ पर का टर्मिनल कितना था? बी। तो ऑब्वियसली इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? VA माइनस ऑफ योर VB। सो VA माइनस VB कितना होगा? देखो जल्दी से, इसमें से जैसे ही यहाँ से करंट जाएगा, मान के चलो सम करंट ऑफ योर I एम्पियर्स इसमें से जा रहा है बेसिकली, तो यहाँ पर करंट कितना आ जाएगा बेटा? इसके अंदर जो करंट आएगा दैट मींस नथिंग बट इक्वल टू योर I1। तो इसमें भी करंट कितना आ जाएगा? I1, और इसमें करंट कितना आ जाएगा? यहाँ पर I2, और इसमें भी करंट कितना आ जाएगा? यहाँ पर I2। ये हो गया रेसिस्टेंस R3, ये हो गया रेसिस्टेंस R4, ये हो गया रेसिस्टेंस R1 और ये हो गया रेसिस्टेंस R2। तो पोटेंशियल इसमें करंट किस तरह से जा रहा है देखो राइट नाउ। So there is a flow of your current right now from higher potential to lower potential. So that means there is a flow of a current like this. तो VA minus VB कितना हो जाएगा? VA minus of your VB is equals to, so in the same direction में जा रहे हो तो किरचॉफ लॉ लगाओ, I1 into your R1 plus of your ये हो जाएगा
I2 into your, so right now for the other resistance कितना हो जाएगा, इसमें कितना करंट जा रहा है, I2 into your R3. क्लियर है? क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है बेटा, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल, इतना ही है. क्लियर है बेटा? Yes, sir. अगर अनबैलेंस्ड V2 ब्रिज है तो हम लोग करेंगे क्या, पहले ओपन द आइडियल वोल्टमीटर, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा. देन कैलकुलेट द करंट्स इंडिविजुअली इन द R1, R2, R3 एंड R4 पार्ट ऑफ रिलेशन. सो दैट विल गिव मी द करंट इन द गिवन कंडीशन. मान के चलो ऐसा कुछ क्वेश्चन है आपके पास, एक एग्जांपल दे रहा हूं. देखो बेसिकली मान के चलो मेरे पास एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, and here there is one more resistance and there is one more resistance here, and here there is a voltmeter right now like this. इसका रेसिस्टेंस है मान के चलो 4 ohms, इसका रेसिस्टेंस है मान के चलो 16 ohms, इसका रेसिस्टेंस है मान के चलो 16 ohms और इसका रेसिस्टेंस है 4 ohms. तो यहाँ से कहीं करंट आ रहा है और यहाँ से कहीं करंट जा रहा है. So if my question is right now, the reading of the voltmeter will be equal to how much? The reading of voltmeter, the reading of voltmeter is dash. Be giving you the options right now for me. 12 volt, next one is your 8 volt, third one is your 20 volt, and fourth one is your 16 volt. This is the terminal A and this one is your terminal B. करना क्या है, जल्दी से बोलो, करना क्या है? ये तो बैलेंस्ड ब्रिज नहीं है, तो ओपन द वोल्टामीटर, तो वोल्टामीटर को निकाल दो पहले, देन कैलकुलेट द करंट्स इंडिविजुअली इन द रेजिस्टेंस. ठीक है ना? तो इसमें हो जाएगा यहाँ पर 4 ohms और ये हो गया मेरे पास 16 ohms और ये हो गया 16 ohms और ये हो गया मेरे पास कितना, 4 ohms. ठीक है ना? तो अब इसमें फ्लो ऑफ करंट होगा, कितना करंट जा रहा है इसमें देखो राइट नाउ फॉर मी. सो करंट कितना आएगा, कोई बता सकता है क्या? I is equals to your, मान के चलो प्रॉब्लम में दे रखा है करंट 2 amperes. दिस इज गिवन फॉर अस इन द प्रॉब्लम 2 amperes. सो ये करंट यहाँ पर बहेगा, तो ऊपर का रेजिस्टेंस कितना है, नीचे का भी रेजिस्टेंस उतना ही है ना, तो फ्लो ऑफ करंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 एम्पियर जाएगा, इसमें 1 एम्पियर जा रहा है, इसमें भी 1 एम्पियर जा रहा है और नीचे भी कितना जा रहा है, 1 एम्पियर एंड 1 एम्पियर, तो इसमें भी 1 एम्पियर करंट ही जाएगा, क्योंकि ऊपर का रेजिस्टेंस और नीचे का रेजिस्टेंस दोनों भी सेम है. ठीक है ना? सो दिस इज योर टर्मिनल ए एंड दिस इज योर टर्मिनल बी. सो पोटेंशियल ए माइनस पोटेंशियल बी, सो आई कितना है मेरे पास, 2 एम्पियर है. सो वी ए माइनस वी बी कितना आएगा, कोई बता सकता है क्या? VA minus of your VB will be equal to how much? So there is a flow of a current from higher potential to lower potential, तो ये positive a negative है. Then this one is also right now positive and this one is also negative. Okay, कितना आएगा बताओ जल्दी से? 12 volt आया. VA minus VB is equals to your how much? This will be equal to your minus of your 4 यहाँ पर है, plus of your 16 यहाँ पर है. ठीक है ना? Yes, sir. So that will be equal to how much for me? 12 volts. Clear? Next one. Next side heading लिख लो. Current in wire. Current in wire connected between A and B. Next concept is current in the wire which is been connected between the terminals A and B. ठीक है? तो मान के चलो अपने पास सर्किट कुछ इस तरह से, this is one resistance and this one is one resistance and this one is one resistance and this one is one resistance, और इन दोनों के बीच में एक वायर कनेक्टेड है इस तरह से. सो ये हो गया टर्मिनल ए और ये हो गया टर्मिनल बी. इसके पास है 3 ohms, इसके पास है 6 ohms, इसके पास भी 6 ohms और इसके पास भी 3 ohms. ठीक है? एंड दिस वन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी यहाँ पर समवॉट लाइक दिस, और इसका पोटेंशियल दे रखा है 36 वोल्ट. सो करंट इन द वायर कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी. ए एंड बी के पास पोटेंशियल सेम रहेगा ना बेटा?
ए एंड बी के पास पोटेंशियल सेम रहेगा कि नहीं होगा? इसमें से फ्लो ऑफ करंट होगा, तो इसमें बताओ करंट कितना होगा? यहाँ पर करंट कितना होगा, इसमें करंट कितना होगा, फिर 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 इसमें करंट कितना होगा। तो ये तो यहाँ से वापस चले जाएगा बाहर, चलो ठीक है ना। तो अब देखो ए एंड बी तो एक ही जगह टर्मिनल कनेक्टेड है, तो मैं इन दोनों को मिला सकता हूँ। तो 3 एंड 6 विल बी विच कॉम्बिनेशन बेटा? तो यहाँ पर एक पोटेंशियल होगा और यहाँ पर एक पॉइंट होगा, तो इन दोनों के बीच में एक रेसिस्टेंस यहाँ पर आएगा, फिर इन दोनों के बीच में एक रेसिस्टेंस यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। और चलो मैं इसको ऐसा कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो दोनों को मैंने मिला दिया, पॉइंट ए एंड बी को मैंने मिला दिया बिकॉज दे आर एट सेम पोटेंशियल। तो यहाँ पर एक रेसिस्टेंस होगा और नीचे भी एक रेसिस्टेंस होगा, फिर ऊपर भी एक रेसिस्टेंस होगा, फिर नीचे भी एक रेसिस्टेंस होगा, एंड दिस इज द टर्मिनल्स। यहाँ पर से वायर लगा हुआ है पॉजिटिव एंड एज वेल एज ऑफ योर नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर हो गया मेरे पास 3 ओम्स और यहाँ पर हो गया मेरे पास 6 ओम्स, ये भी हो गया 6 ओम्स और ये भी हो गया 3 ओम्स। तो करंट बताओ कितना जाएगा इसमें से कंपल्सरीली? तो पहले टोटल करंट निकालना पड़ेगा। टोटल करंट कैसे निकालोगे बेटा? तो ये यहाँ पर हो गया 36 वोल्ट। 3 and 6 are in which combination? Parallel. 4 and 3 are 6 and 3 are in which combination? Parallel. तो कितना हो जाएगा बेटा? These two are in parallel. These two are in parallel. हेलो, आए चले गए लोग? हम ऑडिबल बेटा? Yes, sir. Yes, sir. 3 and 6 कौन सा कॉम्बिनेशन में आ रहा बताओ जल्दी से? 3 and 6 are in which combination? Parallel. तो कितना आया रेजिस्टेंस इसका? 3 into 6 divided by 3 plus 6 कितना हुआ? 18 by 9. 18 by 9। तो ये कितना हुआ? 2 2. ohms। उसके बाजू का भी 2 ohms है कि नहीं? 2 and 2 will be in which combination? Series combination। तो R effective Series. कितना बन गया? 4। तो 4. करंट कितना बन गया? I is equals to V by R। V की वैल्यू कितनी है? 36 divided by 4। 9. तो कितना आ रहा? 9 9. एम्पियर्स। तो करंट कितना आ रहा है इसके अंदर? 9 एम्पियर्स। यानी यहाँ से करंट कितना जाएगा? यहाँ से करंट गया 9 एम्पियर्स, तो यहाँ तक गया, तो इसमें गेट होते होके डिवाइड हो गया। तो कितना डिवाइड हो रहा है देखो यहाँ पर, आपको ये तो निकालने आता है बेसिकली। I1 और I2 में करंट कैसे निकालोगे? यहाँ पर मान के चलो I1 है और यहाँ पर मान के चलो I2 है। तो I1 में कैसे निकालोगे? उसका ऑपोजिट रेसिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर 6 डिवाइडेड बाय योर टोटल रेसिस्टेंस 9 इनटू टोटल करंट 9। तो ऊपर के उसमें करंट कितना आ गया? 6 एम्पियर। ये वाला चले गया। और आउट I2 में कितना हो जाएगा? ऊपर वाला रेजिस्टेंस 3 डिवाइडेड बाय योर टोटल रेजिस्टेंस इज नथिंग बट 9 इनटू टोटल करंट इज आल्सो इक्वल टू योर 9। तो ये 9 चले गया, तो इसमें करंट कितना आ गया? 3 एम्पियर। ठीक है, यानी इसके अंदर जो करंट आ रहा है, यहाँ पर करंट कितना आ गया मेरे पास? इसके अंदर आ गया मेरे पास करंट ऊपर के उसमें 6 एम्पियर यहाँ पर होगा। तो इसके अंदर करंट कैसा आ जाएगा? बेसिकली यहाँ पर भी करंट इस तरह जा रहा है ना, सॉरी ये भी इस तरह से ही जाएगा। तो यहाँ पर करंट आ जाएगा 3 एम्पियर, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ना। सो दिस वन इज I1 एंड दिस वन इज योर I2। तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3। तो फिर यहाँ से करंट कितना आ जाएगा बेटा? ए एंड बी आर डायरेक्टली कनेक्टेड राइट नाउ। तो इसके अंदर करंट कितना जा रहा है? देखो यहाँ पर 6 और 3 में कितना करंट होगा? तो यहाँ पर करंट कितना होगा जल्दी से बता दो। यहाँ पर करंट कितना हो जाएगा? 6 ओम्स में करंट कितना आ जाएगा? 3 एम्पियर। और 3. 3 ओम्स में करंट कितना आ जाएगा? 6 एम्पियर। 6. तो इसके ऊपर में उसमें करंट कितना आ जाएगा? इसमें आ जाएगा मेरे पास 3 एम्पियर और इसमें से जाएगा मेरे पास 6 एम्पियर। यानी 6 में से यहाँ पर अगर 3 एम्पियर यहाँ गया तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ पर भी 3 एम्पियर। ठीक है ना, बताइए ना बेटा। Yes, sir. देखो 6 प्लस 3 यहाँ पर आ गया, फिर ये 3 का करंट यहाँ पर आ गया राइट नाउ। दोनों का सेम पोटेंशियल हो रहा है, तो आउटपुट भी कितना आ जाएगा? फिर मेरे पास सेम ही आ रहा है। देखो 3 और यहाँ पर करंट कितना है? 6। तो आउटपुट में करंट कितना है फिर मेरे पास? 9 एम्पियर। सो करंट बिटवीन द टू वायर्स ए एंड बी विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? 3 एम्पियर्स पार्ट ऑफ रिलेशन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। फाइंड
effective resistance, find effective resistance between A and B. यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इस तरह से 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। नीचे भी उसी तरह से यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ पर हो गया 3। तो ये हो गया टर्मिनल बी और ये हो गया टर्मिनल ये हो गया 3 ohms, ये हो गया 3 ohms, ये हो गया 3 ohms। तो ये हो गया 3 ohms, ये हो गया 3 ohms और ये हो गया 3 ohms। ठीक है, और इन दोनों के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर इस तरह से भी रेजिस्टेंस है। इसका भी 3 ohms है और इसका भी 3 ohms। जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर इसका। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी इक्वल टू और हाउ मच? तो बता सकता है? तो ये 3 और 3 और नीचे 3 एंड 3 आर इन द विड्थ ब्रिज, तो ये इनइफेक्टिव हो गया। 3 एंड 3 एंड 3 एंड 3, तो ये भी इनइफेक्टिव हो गया। तो फाइनली बचा कितना बेटा? यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ऊपर में एक रेजिस्टेंस है, तो फिर ऊपर से एक रेजिस्टेंस है, फिर नीचे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस। दिस इज योर टर्मिनल बी एंड दिस इज योर टर्मिनल ए। ऑल ऑफ द रेजिस्टेंस आर 3 3 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3 और ये हो गया 3। तो आर इक्विवेलेंट कितना बनेगा जल्दी से बताओ? आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, ऊपर के पूरे कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज, और नीचे के भी सीरीज, तो कितना हो गया? 9/2। 9/2। ये हो जाएगा 9/2 ohms। आ गया? अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस से सेम है तो ऐसा हो जाएगा। कितना टाइम बाकी है बेटा? नेक्स्ट वन इज इनफाइनाइट लैडर कॉन्सेप्ट। इनफाइनाइट लैडर कॉन्सेप्ट